Gold, iron, and salt. Okay, and mixture, Astha. A mixture is made up of more than one kind of substance which can be separated. Example, air is a mixture of gases. Milk is a mixture of nutrients. Moist soil is a mixture of sand, air, water, microorganisms, and humus. Yes. So all the components in a mixture retain their property also, है ना? जैसे हम लोग सलाद की बात किए थे. So now why do we need to separate the substances to remove unwanted things? To remove unwanted things. Yes. And to separate useful substance from that, जैसे पेट्रोलियम, उसमें से हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं पेट्रोल को, डीजल, केरोसिन, टार, पेट्रोकेमिकल्स मीन्स उस मिक्सचर में से हम लोग यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट भी कर सकते हैं. फिर हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड के सेपरेशन में हम लोगों ने हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें दो सॉलिड मिक्स हैं और एक ज़्यादा हो एक कम हो कि सिंपली हम लोग चुन करके हटा सकते हैं, हाँ. सो दैट इज हैंड पिकिंग. Yes, स्टॉक्स sir. वगैरह जो. नेक्स्ट वाज अकॉर्डिंग टू साइज. अब अगर साइज ज़्यादा है किसी पार्टिकल्स का तो सीविंग करेंगे, है ना. जैसे अगर कोई पार्टिकल्स बड़े हैं, कुछ पार्टिकल्स छोटे हैं, तो छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे छन जाएंगे और बड़े वाले पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, है ना. सो इफ टू सॉलिड सब्सटेंस आर मिक्स्ड विद ईच अदर एंड दे हैव द साइज डिफरेंस, तो हम लोग कौन सा सेपरेशन यूज करेंगे? Sir, सीविंग. sieving. Sieving. यस. हमने ये भी देखा था. Sieving. यस. नाउ लेट अस नो अबाउट विनोइंग. विनोइंग में क्या होता है? इफ टू सॉलिड particles are mixed with each other and both have the different. I am audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, if sir. two solids are Yes, sir. mixed with each other और दोनों का weight difference है, if they have Yes, weight sir. difference, then Sir, कुछ तो sir it is winnowing. हाँ, तो उसमें हम लोग विनोइंग करेंगे. क्या करेंगे? उसे हाइट से फॉल करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो ग्रेन्स हैं जो जिनका वजन ज़्यादा है वो वहीं पे फॉल होंगे और जो उनमें चाफ है जो हल्का है वो हवा की वजह से उड़ करके दूसरी जगह पे गिरेगा, है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. winnowing is, Lighter, sir, than that. हाँ, who will define winnowing? Sir, I. Sarai. Sarai. Vidya Kumari. Sarai. Yes, Vidya. Sarai. Vidya Kumari, define winnowing. Sir, the process of separation grains from the chaff by allowing the mixture to fall from a certain height. Fall from a certain height, है ना. So that process is called winnowing. Okay, next Rakhi Ranjan. Yes, sir. Winnowing is an Nowadays winnowing is also done by machines, Machine. है ना. मशीन का यूज करते हैं आजकल. Do you know about threshing? We have discussed about threshing last class. थ्रेसर बोलते हैं क्या? हाँ, थ्रेसर मशीन से हम लोग थ्रेसिंग करते हैं. तो who will define threshing here? Can I? Sir, I can. Sir, Tanishkraj. Do not unmute Sir, your can voice. सुमित्रा. Do not unmute. Can your I? voice. Do not unmute. Sir, your may voice. You just raise your hand. Just raise your hand. Okay. Okay, Tanishk Raj, define threshing. Tanishk, unmute your call. Yes. When a paddy, wheat, or mustard crops are ready, the stalks are cut and dried in the sun. The dried stalks are beaten to free the grains from the stalk. The process is called threshing. Very good. So when paddy, wheat or mustard crops
रेडी हो जाते हैं तो उसके स्टॉल्स को कट करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड द ड्राइड स्टॉल्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स। जैसे मैंने बताया था कि एक लकड़ी का रहता है चौकी जैसा, उस पर उसे बीट करेंगे और उसमें से ग्रेन्स जो है छूट जाएगा। सो द रिमूवल ऑफ ग्रेन्स है ना, और द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च इज कॉल्ड एज थ्रेसिंग। सो नाउअडेज जो है मशीन कॉल्ड थ्रेसर आर यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च। पता है ना सभी को थ्रेसर के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now today we will be knowing about the separation of insoluble solid from liquid। जिससे कुछ insoluble solid liquid में मिक्स हो गए, उसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें अगर कोई जैसे सैंड है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सैंड को कितना भी घोल दो वो गायब हो जाएगा क्या वाटर में? No, sir. बट sir. चीनी सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल है। बट ये सेडिमेंटेशन में क्या है कि वैसे सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होंगे उसे सेपरेट कर पाएंगे हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के प्रोसेस से। तो लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि अगर एक ग्लास पानी लेंगे, उस ग्लास पानी के ग्लास में अगर हम लोग सैंड डाल देते हैं उसे घोल देंगे, है ना, तो हम लोगों ने ये देखा था घोल देने के बाद ऐसा दिखेगा, है ना, Yes, sir. Mix हो जाएगा. मिक्स हो जाएगा। फिर उसे अगर हम लोग थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो सेडिमेंट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे यहाँ पे। Yes, sir. हाँ। सर ये हम लोग बना लिए होमवर्क में। ये होमवर्क सर ये बना हम लिए? लोग बनाए हैं होमवर्क में। सर you give the homework. Yes. Sir you give the homework yesterday. Yes, very good. Yes, sir. You have done very Sir good. I can do. Yes, Now sir, I listen can to do. me. Now listen to me. I know you have done your homework. You are very good student. Okay sir. Now listen. Here if you mix a sand, देखो ऐसा दिखेगा। फिर थोड़ी देर बाद जितने भी सैंड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और वो जो नीचे बैठ जाएंगे उसे कहेंगे हम लोग सेडिमेंट्स। That settled down sand will be called as sediments. सर ये सर जो पानी के नीचे बैठ गया ना उसको सेडिमेंट कहेंगे, और जो पानी में मिला हुआ है ना तो उस पानी को सुपरलेटेड लिक्विड कहेंगे। हाँ वेरी गुड। सो वो हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सुपरनाटेंट, वो क्या होता है। जैसे हमारा कंटेनर है उसमें जो बची है ना, तो कुछ अब मान लो मिट्टी मिला है तो उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो घुल गए होंगे वाटर में, है ना, और या फिर Yes, बहुत sir. छोटे होंगे Yes, तो sir. वो वाटर के साथ ही रहेंगे। सर पानी गंदा हो गया होगा हाँ Yes sir. और सर उस पानी को Yes, sir. सुपरलेटेड लिक्विड कहते हैं। यस वेरी गुड। नाउ लिसन, अब वो जो वाटर है जो उसके ऊपर है उस वाटर को हम लोग दूसरे कंटेनर में जो डालेंगे उस प्रोसेस को कहेंगे डिकंडेशन। ठीक है। डिकैंटेशन। सो पहले तो सेडिमेंटेशन, Decantation. पहले तो सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन हो गया। सेकंड ऊपर जो वाटर रह गया उसे हम लोग डिकेंट कर लिए दूसरे कंटेनर में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंडेशन। ठीक है ना। Yes sir. ये आप लोग किए थे, अभी करो। सर ये हम होमवर्क में कर लिए हैं। हाँ सर होमवर्क ये में हम अपने होमवर्क में कर लिए। इसका आंसर मैं पूछ लेता हूँ। साहिल सर कुमार, आप होमवर्क म्यूट योर कॉल खुशी, कीप योर कॉल म्यूट, ट्राई टू नॉट interrupt. I was asking this question to Sahil Kumar. Sahil, question number 1. A mixture of Yes, sir. rice and small pebbles can be separated by A mixture of rice and pebbles. sir एक बार ये देखो दिख नहीं रहा प्रेजेंटेशन। hand picking तो राइस और कंकड़ का मिक्सचर हैंड पिकिंग से सेपरेट करोगे। yes sir यस सर। और Yes sir. अच्छा साहिल, अगर विनोइंग करेंगे उसमें तो होगा। no sir क्यों? राइस मतलब नीचे होगा और वो जो नहीं हो पाएगा सर क्योंकि पेबल्स और राइस दोनों एक साथ ही गिरेंगे, है ना। Yes, ऐसा sir. नहीं होगा कि Yes, sir. पेबल्स जो है हवा की तरफ उड़ जाएगा, उसका भी तो वजन होता है। और राइस नीचे गिर जाएगा। Yes sir. और सेडिमेंटेशन नहीं हाँ। होगा साहिल। no जैसे sir राइस और sir पेबल्स को मिला दिए तो बहुत तेज ऐसे no फिर नीचे No, कहीं sir. पेबल्स जाके बैठ जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, no sir hand picking होगा सर। हैंड पिकिंग ही कर सकते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट इज सिमरन कौर,
सर सेकंड वाले में क्या होगा? Yes, second question to Simran Kaur. Simran Kaur. ओके विद्या बताओ सेकंड का आंसर। विद्या, वेबल्स कैन बी सेपरेटेड। वीडियो ऑन किया है। करवाया है वीडियो नाम का है। Can I? Sorry. Sir, but your voice is not coming. यस खुशी Sir, your voice is not coming. खुशी कुमारी। नहीं सर। Yes, sir. यहाँ दो खुशी है। एक Receiving. listen. Here is two खुशी. One is I orange. am first. So you are first खुशी। Yes, sir. This is the second Khushi. Sir, your mic is mute. Yes, I Yes, sir, muted can my I mic. answer? Listen to me. I am asking vowels can be Okay, sir. separated from ragi flour by Sieving. Sir, sieving. Sir, sieving. sieving करिए। Yes, sir. Sieving. Yes, sir. Yes, sir. Sieving. Sir, yes, sir. ओके। सो आटे में अगर वो वेवल्स है तो वो चालने में वो निकल आएगा। Yes, sir. अच्छा ब्लू कलर खुशी कुमारी। An age-old method of separating chaff from grain is Winnowing. winnowing. winnowing में क्या करते हैं? कैसे सर इसको करते हैं? छानते हैं। क्या करते हैं? सर वो एज ओल्ड मेथड का ना जो छोटा मतलब ग्रेन्स है ना उसको ना वो नीचे गिरता है और जो पल्सेस है वो ऊपर ही उसमें रह जाता है। नहीं समझा मैं। मतलब विनोइंग में क्या करते हैं? ऊपर से गिराते हैं ग्रेन्स को यस सर ऊपर से Yes, गिराते sir. हैं। और ग्रेन्स अपने जगह पे गिर जाता है और उसमें जो भी Yes, उनका sir. चाफ होता है वो Yes, हवा से sir. उड़ जाता है। उसको सर जो चाप होता है वो उससे पल से थोड़ा दूर जाके गिरता हाँ है। थोड़ा दूर जाके गिरता है। सही बोली। गिरते तो ये है दोनों पल्स को सही इकट्ठा कर लेते हैं। यस पल्स अलग और चाफ अलग गिरता है। सर जिससे हिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? सूप होता है ना सूप। यस सर चाटनी। यस सर। सूप आते हैं। छठ में हम लोग देखे ना सूप वो वाला। सर क्या होगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। All of you mute हो। Now all of you mute. उसी से हम लोग गिराते हैं तो विनोइंग का प्रोसेस। Now next filtration. Filtration is used to separate insoluble particle. इसमें भी insoluble particle को ही हम लोग सेपरेट करेंगे। देखो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में भी वैसे पार्टिकल को हम लोग सेपरेट कर पा रहे थे जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में। यहाँ फिल्ट्रेशन में भी वैसे पार्टिकल सेपरेट होंगे जो सॉल्युबल नहीं है। सो इसमें हम लोग एक पोरस डिवाइस यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए। जैसे हम घर में चाय बनता हुआ है ना, तो चाय में यस सर। हम लोग यस सर। हम लोग वो यूज करते हैं Yes, चाय sir. छानने के लिए यस सर। छन्नी। छन्नी। तो Yes, sir. उसमें वो Sir, जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, जिसका साइज पार्टिकल्स का बड़ा है, वो फिल्टर हो गया ना उस yes, sir, छन्नी वो में। छन्नी आ जाता है और जो रहता है वो चल जाता है। तो जो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो जो पार्टिकल्स बहुत वो छोटे हैं, पोरस डिवाइस होता है। जो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं वो भी इनसॉल्युबल थे, लेकिन वो तो पार हो गए ना, वो तो उस छन्नी से पार हो जाते जैसे हैं। तो पोरस डिवाइस से सेपरेट हो सकता है। हाँ तो फिल्ट्रेशन में सेपरेट होगा उसके साइज के बेसिस पे। अब फिल्टर मान लो हम लोग थोड़ा बड़ा सेपरेशन यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट थोड़ा बड़ा है, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स ही सेपरेट हो पाएंगे, फिल्टर हो पाएंगे, है ना। बहुत छोटा छन्नी मतलब उसका जो देखिए अगर हो गए तो उसमें जो होल्स होते हैं अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो बहुत छोटे पार्टिकल्स को ही पार होने देंगे, है ना।
यस सर। और जो सर बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो छन्नी पे आ जाते हैं और जो लिक्विड रहते हैं वो ग्लास में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ वाटर जो गंदे होते हैं, यस सर। जो डर्टी वाटर होते हैं, लिसन, जो डर्टी वाटर होते हैं, जैसे ये एक फिल्टर है, देख रहे हो? Yes. सो इसमें जो इसमें जब वाटर डालते हैं, अगर वाटर डर्टी है और ऊपर वाले कंटेनर में जैसे डाले हैं वाटर, ठीक है, ऊपर में देखो दिख रहा है ना वाटर, तो लेकिन यस सर। नीचे जो वाटर आ रहा है बूंद में, वो प्योर वाटर आ रहा है। ऊपर का पानी अगर ब्राउन रहा नीचे, लेकिन पानी प्योर आएगा। पहले के समय में ये फिल्टर यूज होता था, अभी भी होता है कहीं कहीं पे। अभी ऐसा फिल्टर देखा सर मेरा घर में यही फिल्टर यूज होता है। हाँ, ये फिल्टर सही है वैसे, पुराने टाइम का है। और इसमें क्या होता है कि अगर गंदा पानी भी ऊपर है तो नीचे फ्रेश वाटर ही आएगा। यस सर। तो क्यों ऐसा होगा? बिकॉज इसमें जो फिल्टर लगा हुआ है बीच में, देख रहे हो, इसमें पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। तो उस पोर्स के थ्रू सिर्फ वाटर ही मूव कर सकते हैं। वाटर के साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वाटर में जो नहीं घुला हुआ है, वो पार नहीं हो सकते, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही क्रॉस करेंगे। इस वजह से इस तरफ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही आ रहा है ना। सो हु विल डिफाइन फिल्ट्रेशन हियर? सर आई। लिसन, सब लोग हैंड राइज करके पहले से हो, मुझे कैसे पता चलेगा? वन मोर थिंग, यू शुड नॉट रिपीट। लिसन, आप देखो, एक बात समझो, आपके पास तो चैट का ऑप्शन नहीं है ना? और आप सभी लोग अगर पूछोगे सर क्या हो रहा है, तो एक तरह से ये नॉइज हो रहा है ना, और सभी को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बेटर है कि हम लोग एक काम करते हैं, जो बोल चुके हो वो अभी थोड़ा वेट करो, लेट अदर्स ऑल्सो स्पीक, लेट गिव देम चांस ऑल्सो, है ना? सो यू शुड वेट। अगर वो आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप लोग तो हो, मुझे पता है कि कौन कौन बोल चुका है ना? तो फिल्ट्रेशन कौन डिफाइन करोगे? ऑल ऑफ यू कीप योर हैंड डाउन कर लो। यस, अब जो नहीं बोले वो हैंड राइज करो। फिल्ट्रेशन कौन डिफाइन करना चाहते हो? यस, हर्षित कुमार। Well, filtration is used to separate insoluble particle from liquid using a porous device called a filter. Okay, so filtration is used to separate insoluble particles. जो पार्टिकल सॉल्युबल नहीं है उसे लिक्विड से हम लोग सेपरेट कर लेंगे यूजिंग अ पोरस डिवाइस। एक डिवाइस यूज करेंगे जो पोरस है ना, जो अलाउ करेंगे वाटर को मूव करने में, ठीक है? तो फिल्टरिंग डिवाइस जो है वो क्या हो सकता है? फाइन पीस ऑफ क्लॉथ भी हो सकता है, दैट इज यूज्ड टू फिल्टर वाटर, और स्पेशल पेपर यूज्ड टू फिल्टर लिक्विड्स इन द लैबोरेटरी। स्कूल की लैबोरेटरी में है हमारे पास फिल्टर पेपर। तो स्कूल खुलने पे जब आप लोगों को मैं ले जाऊंगा वहाँ लैब में, वहाँ दिखाऊंगा फिल्टर पेपर है, उसे उस पेपर के ऊपर अगर हम गंदा पानी डालेंगे तो नीचे अगर हम लोग कंटेनर रख लेंगे तो उसमें सफ़ा पानी आएगा, बिल्कुल साफ पानी, ठीक है? यस सर। और कभी-कभी हम लोग कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए। पानी में मान लो बहुत सारा कचरा है और उस वाटर को हमें फिल्टर करना है, तो कोई क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं। और कपड़ा लगा देंगे नल में तो सर कपड़ा नल में पूरा हो जाएगा। नहीं, नल का पानी, हाँ कई बार होता है कि नल के पानी से भी कपड़ा मतलब आता है सर, गंदा ही हो जाता है पूरा गंदा, नल भी गंदा हो जाता है। यस, और अंदर में नहीं, जैसे बाल्टी पे लगा सकते हैं, है ना? बाल्टी में कपड़ा लगा करके पानी डालें, फिल्टर हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. So size of pores on a filter depends on the size of the solid that is to be separated, है ना? कि पोर का साइज जो है वो डिपेंड करेगा जिसे हमें फिल्टर करना है उसके साइज पे, है कि नहीं? Yes, sir. So the net that filter air in an air cooler is a fine plastic mesh
whereas a metal strainer used to filter tea has large pores. मेटल स्ट्रेनर तो देखे हो सब लोग, जो हम लोग चाय Yes, sir. यूज करते हैं? Yes, sir, उसमें देखे बड़े हैं। pores होते हैं। Yes, sir. और एयर कूलर जो होता है उसमें जो फिल्टर होता है, नेट लगा रहता है, उसके बहुत फाइन प्लास्टिक में से होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसमें एयर फिल्टर होकर जाता है। Yes, sir. तो आपको ये भी डायग्राम बनाने हैं होमवर्क में, ठीक है? ये फिल्टर का डायग्राम। सर और कौन सा डायग्राम बनाना है? पहले जो बनाना था वो तो बनाना ही है, ये वाला आपको बनाना है होमवर्क में। Yes, sir. Okay, sir. नेक्स्ट है और ये आगे जो पढ़ेंगे वो, जैसे डिड यू नो ducks filter water and separate food particles from it with the help of their beak. The mouth of whale too perform a similar function. Ducks देखो कैसे होते हैं, बत्तख। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने Yes, sir. I have also seen that. I have seen some ducks floating over water and वो पानी भी पी लेते हैं उसी में से। तो उतना गंदा वाटर होता है फिर भी उसमें वाटर कैसे पी लेते हैं, क्योंकि वो फिल्टर कर पाते हैं वाटर को। Sir, how? Yes, sir. वो सर कैसे कर पाते हैं? उनके बीक में लगा हुआ होगा ऐसा ही फिल्ट्रेशन यूनिट, उसमें फिल्ट्रेशन यूनिट लगा हुआ होगा उसके बीक के अंदर जो फिल्टर करता होगा वाटर। जैसे हम लोग फिल्टर बनाए हैं, है ना, हमारा फिल्टर जो है साइज के बेसिस पे ही तो है, उसके माउथ में हो सकता है वैसा फिल्टर हो, ठीक है? Yes, sir. अपने बीक के हेल्प से वो कर लेते हैं। और फूड पार्टिकल्स को भी सेपरेट, जैसे बहुत सारे फूड भी होते हैं उसमें वाटर में मिक्स है, तो उस फूड को ही वो सिर्फ लेते हैं, है ना, बाकी उसके आसपास जो है उसे नहीं लेते। सो उन्हें उनके पास फिल्टर करने का ये टेक्निक होता है। ऐसे ही माउथ ऑफ व्हेल टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, तो व्हेल के माउथ में भी ऐसा होता है, वो फिल्टर कर पाते हैं अपने फूड को, बहुत सारे फूड को वो खा लिया, उसमें से वो जो यूज़ का है वो फिल्टर कर लिया, बाकी फिर बाहर, है ना? Yes, sir. There is an activity जो हम लोग अभी स्कूल में होते तो ये कर पाते हैं आसानी से। तो ये एक्टिविटी वैसे समझ में आएगा। टेक 2 बीकर ए एंड बी, हमें 2 बीकर लेना है ए और बी, ये भी आपको होमवर्क में बनाने हैं, ये एक्टिविटी होमवर्क कॉपी में, ठीक सर है? ये वाला। हाँ। ओके सर। हाँ, पहले ये समझ लेते हैं। सर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डायग्राम ड्रॉ करना है। सर होगा। नाउ लिसन टू मी, समझ तो लो पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टेक 2 बीकर ए एंड बी, हम लोग 2 बीकर ले लेते हैं। देखो नीचे यहाँ पे ए और बी है ना, मार्क किया हुआ दिख रहा है बीकर। Yes, sir. बीकर ए Excuse और me, sir. बी। यस सिमरन। Excuse me, sir. यस बोलो सर सिमरन। आपका स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। तो यू हैव सम नेटवर्क इशू। नो सर। No, sir. ब्लैक नहीं दिख रहा। तो बीकर ए और बी No, sir, black नहीं दिख रहा। नाउ ऑल ऑफ यू म्यूट कॉल। सर सही दिख रहा है। अब सभी लोग म्यूट कर लो कॉल और सुनो मेरी बात। वी हैव टू टेक 2 बीकर, बीकर ए एंड बी। बीकर ए में हम लोग क्या ले रहे हैं? सैंड एंड वाटर। दिख रहा है सभी को बीकर ए? ये रहा हमारा बीकर ए। यस सर। इसमें हमने क्या लिया? सैंड और वाटर। और बीकर बी में क्या लेना है? वाटर, वाटर। सिर्फ वाटर। सॉल्ट वाटर, Sir, सॉल्ट salt एंड and वाटर। Salt and water. ठीक है। सर सैंड और वाटर ब्रेकर ए में लेना और ब्रेकर बी में सैंड एंड सॉल्ट एंड वाटर लेना है। बिल्कुल वैसा ही तो लिखा हुआ भी है, देखो। Yes, sir. अब क्या करना है? इसे फिल्टर पेपर यूज़ करना है हमें। फिल्टर पेपर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं,
ठीक है। अब इसे कैसे फोल्ड करना है देखो, पहले तो इसे गोल कट कर लेना है, फिर ऐसे इसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे करके गोल अगर है फिर उसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर इसे थर्ड फोल्ड करना है, ठीक है। थर्ड फोल्ड कर लिया, थर्ड फोल्ड हो गया। अब इसे बीच से खोलेंगे और वो फिल्टर होगा, ठीक है। तो अब इसे देखो यहाँ पे इस कंटेनर के ऊपर, सेकंड कंटेनर जो है इसके ऊपर हमने ये गोल सा जो इसे क्या कहते हैं, फनल कहते हैं ना। देखो शीशे का बना हुआ फनल है। यस सर, स्टेम ऑफ फनल। तो फनल, हाँ, तो उस फनल के ऊपर ना उस पेपर को हम लोग रखे हैं। सर उस पेपर के ऊपर से ना सैंड और वाटर वाले गिराएंगे तो खुशी सैंड तुम्हारी प्लीज वीडियो कॉल, खुशी लिसन पहले, पूरा मुझे बोल लेने दो। इस फिल्टर को जब हम लोग थर्ड फोल्ड करेंगे ना, ये देखो थर्ड फोल्ड हुआ, अब उसे बीच से खोल लेंगे और उस फनल पे रख देंगे। अब कंटेनर ए और कंटेनर बी का वाटर उसमें डालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या, प्लीज वीडियो कॉल किसका अनम्यूट है? खुशी, खुशबू जिया सुन रही है, हम नहीं। खुशबू